دعا ہوگی اور میں گزارش کرتا ہوں مولانا نازش اکبر صاحب سے کہ آپ آئیں اور دعا. اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور ان بہنوں اور بچوں کے ساتھ جو بیوہ ہوئے ہیں، یتیم ہوئے ہیں، اور ان زخمیوں کے ساتھ. حضرات گرامی، دعا کے تعلق سے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے دعا کے تعلق سے، دعا و مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور جب کبھی مصیبت، پریشانی، دقت، دشواری یا کوئی آزمائش جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے. راتوں کو بالخصوص تہجد کے وقت دعاؤں کا اہتمام. اور آپ کو معلوم ہے کہ تمام امن پسند اور انصاف پسند شہری تمام دنیا کی عوام سے اپیل کرتے ہیں، ان ظالم سربراہوں سے خاص طور سے اپیل کرتے ہیں جو اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں کہ ذرا ہوش کے ناخن لے لو. اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا تو ایک روز تمہارا وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلے تاریخ میں ظالموں کا ہو چکا ہے. میں اس موقع جو سب سے بزدل ہے اس قوم کا نام یہود. ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. تو کہا ان سے کہو یہ مرنے کی خواہش کریں تاکہ اللہ سے ملاقات ہو. یہ ہرگز مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. یہ جینے کے حریص ہے. یہ دنیا کی حریص ترین اور بزدل قوم ہے. یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر انہوں نے لٹکایا تھا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کو اٹھا لیا. لیکن آج یہود کے ساتھ اہل مغرب کے ننگے لوگوں کو ہم وارن کرنا چاہتے ہیں. اے نصرانیوں، اے یورپ امریکہ کے لوگوں، تم بھول گئے اس بات کو. یہ بات تم کہتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین فلسطین میں ان یہودیوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا. وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین. اما بعد، فلسطین کے 23 لاکھ مجاہدین کی نظر یہ ماجد دیوبندی صاحب کا شعر کرتا ہوں. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے. پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، آج اگر وہ پیسوں کے لالچی ہوتے، اگر ان کی نظر دنیا پر ہوتی تو دنیا کے بہترین مقامات پر ان کے لیے بنگلے تیار تھے. لیکن آج بھی وہ مٹی کے مکانات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے کہ حکومت سے سمجھوتا کرتے تو دنیا کے تمام آسائش کے سامان ان کے لیے پل کے بچھائے موجود ہیں. لیکن وہ قبلہ اولیٰ کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اسی طرح 23 لاکھ لوگوں کو مٹانے کے لیے پوری دنیا تلی ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس میں ایمانی جذبہ رکھ دیا وہ جذبہ تمام طاقتوں پر بھاری ہے. ابھی اخبار ہے انڈیپینڈنٹ اخبار ہے، اس کی رپورٹ یہ رہی کہ اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہو گئی. ایک دوائی آتی ہے اینستھیسیا، جو آپریشن کے جب کرتے ہیں تو اس کو لگایا جاتا ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے ٹانکے لگا دیے جاتے ہیں، اس کی چیرہ پھاڑی ہو جاتی ہے. وہ دوائیاں بھی وہاں اسپتال میں ختم ہو چکی ہے. آپ تصور کرو ان معصوم بچوں کا. آج اگر ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں ایک چھوٹا سا دانت نکلوانے کے لیے، ایک چھوٹی سی ڈانٹ نکلوانے کے لیے، ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں کہ ایک انجیکشن کی جگہ 2 لگا دو تاکہ ہماری ڈانٹ پوری سن ہو جائے اور تکلیف محسوس نہ ہو. وہاں وہ معصوم بچے جن کے سروں کو ٹانکوں سے سیا جا رہا ہے، جن کے سینوں کو سیا جا رہا ہے اور ان میں سے گولی نکالی جا رہی ہے، چھرے نکالے جا رہے ہیں، بارود کے ریشے نکالے جا رہے ہیں.
आप तस्वुर करो वो बच्चे क्या बर्दाश्त कर रहे होंगे। जो करारदादें पेश की जा रही हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हुकूमत हिंद तक भी उनको पहुंचाएं, और मैं जो करारदादें आपके सामने पढ़ूंगा उन हर करारदाद के ऊपर आपको जोर से अल्लाहू अकबर कहना है कि वो मौजूदा हुक्मरानों के कानों तक भी पहुंचनी चाहिए। राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से आयोजित ये दुआया इजलास तारीख 20/10/2023 बरोज जुमा को इसराइल की खूनरेजी के खिलाफ मंदरजा जेल करारदाद पास करता है। यह इजलास आम मासूम फिलिस्तीनी अवाम और उनके घरों पर इसराइल की ओर से की जा रही बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम इसराइल को इस बात की तंबीह करता है कि उसको अपने जुल्म से फौरन बाज आना चाहिए। यह इजलास आम इस बात की पुरजोर अपील करता है कि इसराइल को फौरन फिलिस्तीन की जमीन खाली करनी चाहिए। यह इजलास आम इसराइल के जरिए फिलिस्तीनी अवाम की नस्ल खुशी के खिलाफ अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार करता है। यह इजलास आम मासूम फिलिस्तीनी बच्चों, हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों पर इसराइल के जरिए की जा रही रॉकेट की बारिश, बमबारी के खिलाफ आलमी बिरादरी को आह्वान करता है कि वह इस इंसानियत को मजालिम के खिलाफ इसराइल से अपने रिश्ते कता ताल्लुक करे और इसराइल को आलमी बिरादरी से अलग थलग कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम दुनिया के तमाम मुल्कों से गुजारिश करता है कि वह इसराइल को फौरन से पेशतर हमले बंद करने के लिए पाबंद करे। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम अरब ममालिक को कुल्लू मुस्लिम इख्वा पर अमल करने की याद दहानी कराता है। अल्लाहू अकबर। मासूम फिलिस्तीनी अवाम के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े होने की गुजारिश करता है। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम तमाम अमन पसंद, इंसाफ पसंद अवाम से अपील करता है कि वो इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट करे। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम दुनिया के तमाम मुल्कों को महात्मा गांधी के उन अल्फाज पर अमल करने की ताकीद कराना चाहता है जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि जिस तरह फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इंग्लैंड इंग्लैंड के रहने वालों का है, उसी तरह फिलिस्तीन की जमीन फिलिस्तीनियों की है। अल्लाहू अकबर। यह इजलास आम मौजूदा मरकजी हुकूमत को उन अल्फाज को याद दिलाता है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है, ये जमीन उसको खाली करनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। जो फिलिस्तीनी है उनके अधिकारों की प्रस्तावना होनी चाहिए। अल्लाहू अकबर। इसलिए मौजूदा मरकजी हुकूमत को इस मौका की तारीफ करते हुए अपनी जिम्मेदारी को भरपूर तरीके से निभाना चाहिए। अल्लाहू अकबर। ये इजलास आम आलमी बिरादरी से गुजारिश करता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और पूरी इसराइल की हुकूमत पर आलमी अदालत में जंगी कानून के खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा चलाए और इसकी पूरी हुकूमत को फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। ये इजलास आम फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाने वाले, फिलिस्तीन की जमीन पर उसका हक तस्लीम करने वाले उन तमाम इदारों, तंजीमों और अवाम को तहसीन की निगाह से देखता है और उनसे गुजारिश करता है कि इसराइल पर दबाव बनाए कि वो अपने जुल्म से बाज आए। अल्लाहू अकबर। मोहतरम बुजुर्गों, मोहतरम माओं और बहनों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात तो ख़वातीन, ये बात मालूम हो चुकी कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं, किस मकसद से जमा हुए हैं। बहुत से मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं शुरू में ये ऐलान करता कि कई उलमाए किराम भी होंगे, उनको मैं दरख्वास्त करता कि आप यहाँ तशरीफ़ ले आइए, हमसे गुस्ताखी हुई। लेकिन एक बात जो बैठे हुए हमारे कई साथियों ने भी कही और मुझे भी जो नज़र लग रही थी वो ये, हमारी एक बात तो ये कि हमारी मौजूदगी, हम बोलें या ना बोलें, इजहार करें या ना करें, जिस गम में और जिस दर्द में, जिस बेचैनी में हम मुब्तला हैं, वो सब हमें मालूम है। और हमारा यहाँ जमा होना इस बात का इजहार है कि हम जुल्म के खिलाफ, मजलूम
मजलूमीन की हिमायत में यहाँ जमा हैं और बड़ी तादाद में जमा हैं। यही इस बात का सबूत है कि हम जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह से दुआ करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह तबारक ताला और मजलूमीन की मदद फरमाए। और एक बात जो याद आ रही थी वो ये, माओ और बहनों को देखकर मैं आपको भी सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को और आपके वक्त की कुर्बानी को और आपके आने को सलाम करता हूँ। और आपके साथ साथ उन माओं को, फिलिस्तीन की उन माओं को सलाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे जियाले, बहादुर नौजवान, हौसलामंद नौजवान पैदा किए। मेरा सिर्फ एक ही पैगाम जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये आफत जो अभी आई हुई है एक मुसलमान पे आई हुई है। अगर किसी मुसलमान के जिस्म में कहीं कांटा भी चुभे तो उसका असर पूरे मुसलमानों पर, पूरे आलम के मुसलमानों पर होना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये दुआइया प्रोग्राम रखा है। आप इस बात का अहद और लेके जाएं कि इंशाअल्लाह हम हर नमाज में उनके हक में दुआ करेंगे। अब तो जो कुछ हो सकता है वो करेंगे। जज़ाकल्लाह व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। अजीज़ों और यहाँ पर आने वाली तमाम ख़वातीन व हज़रात, आज हम जो यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ इजहार के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बताने के लिए कि हम ही वो हैं जो तारीख में हमेशा मजलूम के साथ खड़े हुए दिखाई दिए हैं। जो हमारी तारीख जानते हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नहीं जानते उनको हम बताना चाहते हैं। हमने कभी जुल्म के सामने झुकना नहीं सीखा। हम हमेशा मजलूम की हिमायत के लिए आमादा रहे। आज वो मकाम आ गया है कि जहां पर बासानी ये समझा जा सकता है कि इस दुनिया के अंदर कौन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाइस पे तशरीफ फरमा कौम, मिल्लत और मुल्क के रहनुमाओं, शहर जयपुर की शहजादियों और सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। या अल्लाह, हम तेरी इस कुरान की सूरत पर यकीन रखते हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मजलूमीन के साथ इंसाफ होगा और जालिम खाक में मिलेगा इंशाअल्लाह। जयपुर की शहजादियों, इतनी बड़ी तादाद में तुम्हारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह मजलूमीन की मदद करेगा। ए शहजादियों, तुमने इस बात का सबूत दिया है। हमारे अजीम मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब ये जयपुर का वीडियो जाएगा और ख्वातीन की इतनी बड़ी तादाद जब वहां ये देखेंगे लोग तो कहेंगे जिंदाबाद जयपुर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों और जयपुर की शहजादियों कि तुमने मजलूमीन के लिए आवाज उठाई है। हम शुक्रगुजार, मशकूर और ममनून हैं जयपुर के कायद और जयपुर के जिम्मेदारान कि तुम्हें लब्बैक